Good morning, my all dear students. Hope all of you fit fine and healthy at your home and follow the guideline issued by government to avoid COVID-19 pandemic. Dear student, I welcome all of you in online class. According to schedule, today is your English literature turn, and in the previous class I had explained one important paragraph, and today I am going to explain second most important paragraph of this lesson, that is at last dash 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 over my head. So open your book and see and try to understand. First I have to read this paragraph so that you can understand it. After that I am going to explain with reference and context. So listen and see. At last, I became so exhausted that I could walk no longer. I was tired, I was hungry, I was everything but discouraged. Just after the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. I waited for a few minutes till I was sure that no passerby could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground, with my satchel of clothing for a pillow. Nearly all night I could hear the tramp of feet over my head. So, dear friend, it is the paragraph which is explained by me. So, listen very carefully. First, I am going to tell you the reference of this passage. You have to note down in your copy also. The reference of this passage will be this paragraph has been selected from a lesson, My Struggle for an Education. This paragraph has been selected from the lesson My Struggle for an Education, written by Mr. Booker T. Washington. The context of this passage will be: the writer started his journey to Hampton for getting good education. Dear friends, as you know, the writer was the man of firm determination. लेखक जो था दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति था. उसने जो एक बार संकल्प लिया उसको पूरा करने की उसके अंदर भरपूर ऊर्जा थी. जब तक उस काम को पूरा न कर ले तब तक उसे चैन नहीं मिलता था. The writer started his journey to Hampton for getting good education. He had to travel a very long distance on foot because he was short of money. Because he had not enough money, so he traveled on foot. At one point, he was completely exhausted. एक स्थान पर जब वो पूर्ण रूप से थक चुका होता है तो वो क्या करता है, इसको हम एक्सप्लेनेशन में जानेंगे. एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज इज, लिसन केयरफुली. The author reached Richmond by begging lift in car and wagon, and by foot he reached Richmond. When he reached Richmond, he had no money. जब लेखक रिचमंड पहुंचा तो वो आउट ऑफ मनी हो चुका था, सारे पैसे खर्च हो चुके थे.
ही डिड नॉट नो एनी वन विथ होम ही कुड स्टे, न ही वह किसी को नहीं जानता था। ही वॉज अननोन पर्सन ऑफ दैट प्लेस, उस स्थान का वह अननोन पर्सन था, किसी जान पहचान नहीं थी जिसके यहाँ वह ठहर सके। टू पास नाइट ही वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिड नाइट, वह रात गुजारने के लिए सड़क पर, गलियों में सड़क पर मिड नाइट तक, अर्ध रात तक चलता रहा। सो ही वॉज सो मच एग्जॉस्टेड दैट ही कुड वॉक नो लॉन्गर, इसलिए वह इतना थक चुका था कि अब वह अधिक टहल नहीं सकता था, अब वह अधिक चल नहीं सकता था। दो ही वॉज हंग्री, यद्यपि वो भूखा था। एट ही वॉज नॉट डिस्करेज, द राइटर सेज दैट, यद्यपि मैं अत्यधिक भूखा था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। बट आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज, मैं सब कुछ था लेकिन हतोत्साहित नहीं था। तो लेखक कहता है, दो ही वॉज हंग्री एट ही वॉज नॉट डिस्करेज, देन ही केम अपॉन अ प्लेस वेयर द साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, तब वो अंत में उस स्थान पर आता है जहाँ पर जो साइड वॉक है, फुटपाथ जो है, वो कुछ ऊंचा हुआ था। सीइंग दिस ही क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, उसे देखकर वह उसके नीचे रेंगते हुए चला गया। हेयर ही ले डाउन टू पास द नाइट, जहाँ वह रात गुजारने के लिए वहाँ पर लेट गया। ही यूज ही सैचल एज ए पिलो, उसके पास जो एक छोटा सा बैग था उसको उसने अपना तकिया बनाया, मतलब अपने सिरहाने रखा। ही पास द नाइट देयर, और वहाँ पर उसने रात गुजारी। ही कुड नॉट स्लीप वेल देयर एज ही हर्ड द ट्रम्प ऑफ फीट द पासर बाई ओवर हिज हेड थ्रू आउट द होल नाइट। राइडर कुड नॉट स्लीप वेल बिकॉज ही हर्ड द ट्रम्प ऑफ फीट, लेखक को नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि वो सुन सकता था पासर बाई, वो ट्रम्प ऑफ फीट, पैरों के चलने की आवाज़, ऑफ द पासर बाई, वहाँ से गुजरने वालों की, ओवर हिज हेड थ्रू आउट द होल नाइट, पूरी रात वह गुजरने वाले व्यक्तियों के पैरों की आवाज़ को सुनता रहा, जिसके कारण उसे अच्छी नींद नहीं आ सकी। तो इस पैराग्राफ में लेखक ये बताना चाहता है कि जब वह रिचमंड पहुंचा, तो रिचमंड कैसे पहुंचा ये तो आपको ऑलरेडी पता है। कुछ दूर वो पैदल गया, कुछ दूर वो लिफ्ट मांग के गया, और जब वो कई दिनों बाद रिचमंड पहुंचा तो वह पूर्ण रूप से थक चुका था। कई दिनों से भोजन न करने का वो भूखा भी था, और जब वो रिचमंड पहुंचा वो उसके लिए अनजान जगह थी, जहां वो किसी को जानता पहचानता नहीं था कि वो उसके साथ वहां रात गुजार सके। तो रात गुजारने के लिए किसी से जान पहचान न होने के कारण लेखक अर्ध रात तक सड़कों पर टहलता रहा, और जब उसे ऐसा महसूस हुआ, व्हेन ही फील दैट ही कुड नॉट वॉक लॉन्गर, अब जब उसे वो फील हुआ कि अब वो और अधिक नहीं चल सकता था, तो उसने वहीं पर रात गुजारने का निश्चय किया। और यह करने के लिए उसने देखा सड़क के किनारे एक ऊंची हुई, जिसे फुटपाथ के नाम से भी जानते हैं, वहाँ वो लुढ़क गया। और लेखक यह भी बताना चाहता है कि पूरी रात उसे नींद नहीं आई, क्योंकि वह पूरी रात वहाँ से गुजरने वाले लोगों के पैरों की खटखट की आवाज़ सुनता रहा, जिसका उसे अच्छी नींद नहीं आ सकी। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने इसके एक्सप्लेनेशन को सुना, और आशा करते हैं कि आप इस एक्सप्लेनेशन को अपने नोटबुक में नोट करेंगे और इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगले क्लास में एक और
नए एक्सप्लेनेशन के, एक महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखते रहिए और अध्ययन करते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।